गाडीचा नसतो गाडीचा नसतो काय ना काय And I, Gulzubeen, from class 10, on behalf of Munshi Habibullah Mission Higher Secondary School, Kargil, Ladakh, stand before you to extend a warm and respectful welcome to each and everyone. Let us begin this auspicious day with the grace of tradition. Let us welcome our guest with traditional khatam. And for that, I would like to invite Mr. Sajjad Munshi sir, Rewa coordinator. Please come ahead and welcome them with traditional khatam. You all to our International Science Exhibition, Inter-School Science Exhibition. Today is a celebration of curiosity, innovation and the boundless potential of young minds. On behalf of Munshi Habibullah Mission Higher Secondary School, Kargil, I extend a very warm welcome to our Director Sir, esteemed guests, respected Principal Ma'am, teachers and most importantly, the bright and enthusiastic students from the various schools joining us here today. We are truly honored to host this exciting event that brings some of the most creative and innovative young scientists from across our district. Your presence here is a testament to your commitment to learning, discovery and collaboration. And a very special welcome to our respected judges, Mr. Muhammad Yusuf sir, Dr. Muhammad Ali sir, whose achievements in the field of science and education continue to inspire us. We are grateful to have you here to encourage and motivate our young minds. Thank you, sirs. Science, as we all know, is not just a subject. It's a way of thinking, questioning and exploring the world around us. This exhibition is not only a platform to display models and projects, but also a space to exchange ideas, ignite imaginations and inspire one another. To all the participating students, your hard work, creativity and passion are evident in the remarkable projects you have prepared. Whether your experiments succeed or not, remember that every step you take in learning brings you closer to innovation. Let this exhibition be a place where knowledge meets imagination. Once again, a heartfelt welcome to each and every one of you. We look forward for an exciting, engaging and inspiring day ahead. Let the spirit of science shine through everything we do today. Thank you, and let's make this event a memorable one. Thank you again and may God bless you all. ताकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम, दुनिया की अमानत का।
Now, I would like to invite our Chuman, science in charge, to throw a light on the theme of today's science exhibition. Please, ma'am. So my name is Sabahati with my fellow Mohammed Said and Zainabah. So we are here to present our project, Pedal to Power. So he will be explained in detail. Pedal to what? The theme is? Pedal to Power, sir. Pedal to power, alright. तो सर हमारा ये प्रोजेक्ट है सर पैडल टू पावर। हम जानते हैं कि सर हमारे लद्दाख में जो आजकल पार्क्स बहुत बढ़ रहे हैं सर, और ये बहुत अच्छी बात है और लोग जो है फिटनेस की तरफ अवेयर होंगे। लेकिन क्या है सर की प्रॉब्लम है कि हमारे जो ये मतलब हमारे जो बड़े लोग हैं सर, वो 9 to 5 जॉब्स में अपने ऑफिस में रहकर अपने हेल्थ पे कोई वो इफेक्ट नहीं डाल पाता, उनका हेल्थ थोड़ा कमज़ोर हो रहा है सर, जिसकी वजह से जो है वो पार्क्स वार्क्स में वर्कआउट के लिए जाते हैं, क्योंकि हर कोई जिम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं सर। तो जब वो पार्क्स में जाते हैं सर, तो हमारा थॉट है सर कि क्यों ना उनकी फ़िज़िकल एनर्जी को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सके सर। तो सर हमने पार्क्स में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स देखे हैं सर, जैसे कुछ साइकिल्स होते हैं, कुछ रनिंग मशीन्स होते हैं सर, तो क्यों ना हम उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा सके सर। तो अभी ये जो है सर, हम एक एग्जांपल लेंगे इस साइकिल का सर। तो ये साइकिल की क्या है सर, हम इस साइकिल के पैडल में एक सिंक्रोनस मोटर फिट कर सकते हैं सर। अभी सिंक्रोनस मोटर का क्या है कि सर, इसका टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है और इसके अंदर जो है मल्टीपल गियर्स होते हैं सर, लाइक 4 to 5 गियर्स का कॉम्बिनेशन होता है इसके अंदर। तो सर हम क्या कर सकते हैं कि अगर इसका ये ऊपर वाला शाफ्ट एक बार घूमेगा तो अंदर का मैग्नेटिक कॉइल कम से कम 20 to 30 टाइम्स घूमेगा सर, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे गियर्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो सर जब ये गियर घूमेगा तो अंदर के कॉइल से जो है कॉपर कॉइल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा सर, जो इलेक्ट्रिसिटी हम इस बैटरीज में स्टोर करके रख सकते हैं सर। तो इससे क्या होगा सर कि हमारे पार्क्स काफ़ी डेवलप हो सकते हैं कि हम अपने पार्क्स में चार्जिंग स्टेशंस लगा सकते हैं सर। और सोलर जो हमारे पार्क्स के जो लाइट्स है सर, वो ज़्यादातर सोलर एनर्जी पे चलता है। लेकिन सोलर एनर्जी का क्या है सर कि कभी कभार अगर सन ब्लॉक हो जाए तो सोलर एनर्जी हाँ, काइनेटिक एनर्जी हम यानी इसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे कि हमारे पास आजकल रोड सब कुछ एक्सेसिबिलिटी है, उसको देखते हुए हमने ऐसा बनाने की कोशिश की है सर। और यहाँ पे हमने एक, जैसे कि हमें पता है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, उसको देखते हुए हमने एक बार वहाँ पे एक्सप्लोर भी किया था, वहाँ डंपिंग साइट में, जहाँ पे हम प्लास्टिक का यूटिलाइज़ करके इसमें से फ्यूल निकाल सकते हैं, जिस प्रोजेक्ट को हमने पहले ही सबमिट किया है सर, जिसके ज़रिए हम ऑयल निकाल सकते हैं और हमारे पास गैस निकलता है, जैसे कि इंस्टेड ऑफ हम LPG और CNG की जगह यूज़ कर सकते हैं। हमारे क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्लड आने का बहुत चांसेस रहता है, तो फिर हमने उसको देखते हुए ये फ्लड डिटेक्टर बनाने की कोशिश किया है, जिसमें हमने एक सेंसर का यूज़ किया है। जब भी फ्लड आने का चांस हो तो फिर पीपल को अलर्ट करने के लिए और अवेयर करने के लिए यहाँ पे एक सेंसर का यूज़ किया है जो कि ऑन होगा। और इसके साथ हमने एक हाइड्रोलिक ब्रिज का जो है कनेक्टिंग किया है ताकि जब इस ब्रिज का कोई डैमेज ना हो। जैसे कि हमें पता है सर, आजकल फ्लड की वजह से जैसे कि जम्मू में तावी रिवर के ब्रिज का भी बहुत डैमेज हुआ है, उसको देखते हुए हमने ऐसा बनाया सर, ताकि इसको अपलिफ्ट करके यहाँ पे हमने एक बॉटनिकल गार्डन बनाया है, क्योंकि सर हमने इससे पहले यानी एक साइंस मेडिसिनल टूर एक्सपोजर किया था, उसमें हमने देखा कि हमारे लद्दाख में जो है बहुत सारा बेनिफिशियल हर्ब्स होता है, मेडिसिनल हर्ब्स होता है, जिनको हमें प्रिजर्व करने की बहुत ज़रूरत है सर। उनको देखते हुए हमने एक यहाँ पे एक बॉटनिकल गार्डन जैसा सिस्टम बनाया है, जिससे हमारा इन्वायरमेंट भी क्लीन होगा और साथ में इससे हमारा ग्रीनरी भी बढ़ेगा। और यहाँ पे हमने एक विंड एनर्जी बनाया है, जिसको हम यानी एक मिनट है जो सर क्लिक कर दे। जैसे कि विंड एनर्जी में हमने जो है मेरा नाम नसरीन फातिमा है सर, और मैं क्लास 9 में पढ़ती हूँ। तो फिर आज हम यहाँ मॉडल कंपटीशन के लिए मुंशी हबीबुल्लाह पे आए हैं। तो फिर यहाँ पे हमने एक मॉडल बनाया है स्मार्ट सिटी के ऊपर, जो कि यानी बेसिस है इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। सर फर्स्टली हमने यहाँ पे एक फ्लड डिटेक्टर बनाया है और हाइड्रोलिक ब्रिज बनाया है, और यहाँ पे बॉटनिकल गार्डन बनाया है, और काउ डंग बायोगैसेस का प्रोडक्शन किया है। और यहाँ पे हमने प्लास्टिक यूटिलाइजेशन का यूज़ करके इससे फ्यूल और
फ्यूल और गैसेस निकाला है सर। और यहाँ पे हमारे पास एक पार्किंग सिस्टम है और एक हमारे पास अर्थक्वेक रजिस्टर बिल्डिंग है, और कल्चर के लिए हमने एक ऐसा मार्केटिंग सिस्टम रखा है सर। हाँ मालूम है। So my name is Sabahati with my fellow Mohammed Said in Zainabad. So we are here to present our project Pedal to Power. So he will explain in detail. Pedal to what? The theme is? Pedal to Power, sir. Pedal to power, alright. तो सर हमारा ये प्रोजेक्ट है सर पैडल टू पावर। हम जानते हैं कि सर हमारे लद्दाख में जो आजकल पार्क्स बहुत बढ़ रहे हैं सर, और ये बहुत अच्छी बात है और लोग जो है फिटनेस की तरफ अवेयर होंगे। लेकिन क्या है सर की प्रॉब्लम है कि हमारे जो ये मतलब हमारे जो बड़े लोग हैं सर, वो 9 to 5 जॉब्स में अपने ऑफिस में रहकर अपने हेल्थ पे कोई वो इफेक्ट नहीं डाल पाता, उनका हेल्थ थोड़ा कमज़ोर हो रहा है सर, जिसकी वजह से जो है वो पार्क्स वार्क्स में वर्कआउट के लिए जाते हैं, क्योंकि हर कोई जिम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं सर। तो जब वो पार्क्स में जाते हैं सर, तो हमारा थॉट है सर कि क्यों ना उनकी फ़िज़िकल एनर्जी को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सके सर। तो सर हमने पार्क्स में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स देखे हैं सर, जैसे कुछ साइकिल्स होते हैं, कुछ रनिंग मशीन्स होते हैं सर, तो क्यों ना हम उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा सके सर। तो अभी ये जो है सर, हम एक एग्जांपल लेंगे इस साइकिल का सर। तो ये साइकिल की क्या है सर, हम इस साइकिल के पैडल में एक सिंक्रोनस मोटर फिट कर सकते हैं सर। अब ये सिंक्रोनस मोटर का क्या है कि सर, इसका टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है और इसके अंदर जो है मल्टीपल गियर्स होते हैं सर, लाइक 4 to 5 गियर्स का कॉम्बिनेशन होता है इसके अंदर। तो सर हम क्या कर सकते हैं कि अगर इसका ये ऊपर वाला शाफ्ट एक बार घूमेगा तो अंदर का मैग्नेटिक कॉइल कम से कम 20 to 30 टाइम्स घूमेगा सर, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे गियर्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो सर जब ये गियर घूमेगा तो अंदर के कॉइल से जो है कॉपर कॉइल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा सर, जो इलेक्ट्रिसिटी हम इस बैटरीज में स्टोर करके रख सकते हैं सर। तो इससे क्या होगा सर कि हमारे पार्क्स काफ़ी डेवलप हो सकते हैं कि हम अपने पार्क्स में चार्जिंग स्टेशंस लगा सकते हैं सर। और सोलर जो हमारे पार्क्स के जो लाइट्स है सर, वो ज़्यादातर सोलर एनर्जी पे चलता है। लेकिन सोलर एनर्जी का क्या है सर कि कभी कभार अगर सन ब्लॉक हो जाए तो सोलर एनर्जी डिजिटल कनेक्टिविटी एंड above all harmony with nature. तो अभी हमारे साथ है गुलजार मुंशी साहब, जो मुंशी अब्दुल्ला स्कूल के चेयरमैन है। सर आज यहाँ पे एक साइंस एग्जीबिशन है जिसमें हमारे करगिल के जितने भी स्कूल्स हैं यहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स ने यहाँ पे एग्जीबिशन देखा है। तो सर इसका मेन मोटो क्या है इसके लिए? पहले तो आपका शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ लाए, क्योंकि आप लोगों के आने से इस चीज़ को हाईलाइट होने से जो हमारे बच्चे हैं इन्होंने जो मेहनत की है इसका इनको बहुत इंकरेजमेंट मिलेगा, मुझे इस बात का यकीन है। हमारा मोटो इस एग्जीबिशन को करने का है कि आजकल जो हमारे खासकर ऑर्गेनाइजेशन में जो चैलेंजेस हैं ये हमारे लाइफ पे कितना इम्पैक्ट कर रहा है और इसके बारे में हमारे जो यंग माइंड्स हैं वो क्या सोचते हैं। तो इन मॉडल के ज़रिए से हम इनके अंदर वो जो टैलेंट है या जो सोच है
उस सोच को हम बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि ये जो हमारे नौजवान जो स्कूल के बच्चे हैं, ये अपने आप को इन चैलेंज के साथ कैसे जोड़ते हैं, इनको क्या लगता है कि वाकई ये कोई चैलेंज है, अगर हैं तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए ये किस तरह से अपना कंट्रीब्यूशन इसमें पेश करना चाहते हैं। तो आपने देखा होगा यहाँ स्कूलों ने मुख्तलिफ मॉडल्स लाए हैं, बहुत इनोवेटिव मॉडल्स हैं, जिसको देख के हमें भी बहुत सीखने का मौका मिलता है। तो इसमें आपस में जो हम एग्जीबिशन प्राइवेट स्कूल का हम कर रहे हैं, तो हमने एक इनिशिएटिव लिया, हम पिछले 3 साल से इस चीज़ को कर रहे हैं। इसके ज़रिए जो इनके आइडियाज़ वो शेयर हो जाएंगे और जो दूसरे के अंदर जो इस चीज़ जो क्यूरियोसिटी है वो चीज़ बाहर आती है। तो हमने देखा जब एक कम्पिटिटिव माहौल आता है तो हर साल बच्चा हर साल ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करता है। हम देख रहे हैं कि पिछले सालों से इस साल ज़्यादा इनोवेटिव मॉडल्स ज़्यादा इस पे काम किया है और ज़्यादा इनका कंसेप्ट क्लियर है। तो इस एग्जीबिशन का मकसद यही है कि जो हमारे जो नौजवान लोग हैं, इनकी सोच को, इनके आइडियाज़ को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। तो सर आजकल जो है एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारे करगिल में एजुकेशन में मुंशी हबीबुल्लाह मिशन स्कूल सर बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो और कल एलजी साहब ने भी बोला कि उसका पर्सनली जो है फोकस रहेगा एजुकेशन को लेके। सर इसमें क्या आपको यूटी एडमिनिस्ट्रेशन या हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से क्या मदद मिलते हैं सर, और क्या उनसे तवक्का रहता है आप? एजुकेशन आजकल देखिए कि जो एजुकेशन का जो कंसेप्ट है काफ़ी चेंज हो रहा है। आजकल जो एजुकेशन है इसको ज़्यादा बामकसद बनाने की तरफ से हर चीज़ का रुझान जा रहा है। अब अगर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में भी देखें तो कोशिश किया जा रहा है कि इस एजुकेशन को ज़्यादा रिलेवेंट बनाया जाए, लेकिन थोड़ा सा अभी बदकिस्मती है कि अभी भी जो पुराना मेथड है, हालांकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ऐलान हो चुका है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन ज़मीन पे इतना ज़्यादा नहीं हुआ है। तो कोशिश तो ये होनी चाहिए कि एजुकेशन को ज़्यादातर अपने इलाके से रिलेवेंट किया जाए, यानी जो बच्चा रोज़ अपने माहौल में देखता है वही चीज़ उसको पढ़ने का लिए मिले, ताकि वो उस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा जाए। जैसे यहाँ के बच्चे को अगर हमें याच के बारे में बोलेंगे तो उसको बहुत मुश्किल होगा उसे समझना, अगर उसकी जगह हम याक बोलें तो ज़्यादा आसान है, क्योंकि याक को वो अपने लाइफ में देखता है। तो इस चीज़ को एजुकेशन में लाने की कोशिश तो की जा रही है। तो इसमें गवर्नमेंट स्कूल हों या प्राइवेट स्कूल हों, आपने देखा कि आजकल काफ़ी इनोवेटिव तरीके से बच्चों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की जा रही है। तो हर स्कूल अपने तरफ से मेहनत कर रहा है इसमें। तो इंशाल्लाह देखिए कि अगर हम मेहनत करें तो अल्लाह ताला इसका